So good morning friends. Once again, we are into this multi-purpose water resources projects, its planning, and then we'll be discussing about the river linking or interstate water transfer, and then the river dispute, interstate river dispute. We have seen that the water from the river or the channel is very precious because water is needed for the various purposes, and as the country is developing along with the industrial agricultural development, the uh, population is also increasing. So therefore the need of the water is tremendous because without water nothing will happen. So therefore we need to construct a dam. We need to construct a dam, a hydraulic structure, that is a wall constructed across the river to store the water on its upstream side. Okay, you can see in this photograph on your screen. This is a photograph or sketch of the dam. This wall is called as the dam, and river is flowing from this upstream to downstream side. The dam, where the water is stored is called as the upstream part of the dam, as has been shown here. And the another side of the dam, another side of that wall is called as the downstream. Okay, water is stored on the upstream naturally. So hydraulic structure constructed across a river to store the water on its upstream side. You are looking into this photograph. Generally impervious or fairly impervious barrier put across a natural stream so that water reservoir is formed is then utilized and as and when required. Generally impervious, like of the concrete, of the masonry, or fairly impervious, that is of the earthen type. Barrier यानी फिर से obstruction or the wall put across the natural stream, river, stream and a river, so that a water reservoir is formed. Okay, so the dam is the structure. Due to this construction of the dam, a reservoir is formed. Okay, reservoir of the water is formed, and this reservoir or water reserved, reservoir वर्ड कहाँ से आ गया, रिजर्व से. तो ये रिजर्व जो जहाँ पे किया जाता है पानी अपस्ट्रीम में, वो पानी बाद में हम जो पर्पस के लिए चाहिए वो पर्पस के लिए यूज करते हैं. ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, वाटर लेवल इन द रिवर एट द अपस्ट्रीम साइड, अपस्ट्रीम साइड में पानी की लेवल बढ़ते जाती है, इज वेरी मच इंक्रीज्ड, एंड लार्ज एरिया में बी सबमर्ज्ड डिपेंडिंग अपॉन द वाटर स्प्रेड ऑफ द रिजर्वायर सो फॉर्म्ड. जितना पानी जमा होगा वो पानी स्प्रेड होगा आजू बाजू में. दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द height of the dam. More the height of the dam, more will be water stored and more will be water sprayed also, depending on the catchment area over which the water can spread. Either water will be accommodated into the banks of the river, or water may flow, or water may spread out of the bank. हिंदी में बताता हूं मैं कि ये धरण बांधने की वजह से धरण के अपस्ट्रीम जो पार्ट है, अपस्ट्रीम पार्ट में पानी जमा होगा और पानी की लेवल, ये धरण की जो लेवल है, डैम की जो लेवल है, वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे अपस्ट्रीम साइड में पानी जमा होने की लेवल भी बढ़ते जाएगी और वो पानी फैलेगा भी आजू बाजू. जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे दैट वाटर विल स्प्रेड.
on the upstream side. Now, the water spread depends on the topography of the command area, topography of the catchment area, है ना. कैचमेंट एरिया हिली है, वैली में है, तो पानी लेंथ में स्प्रेड होगा. और टोपोग्राफी अपस्ट्रीम की फ्लैट है, जैसे हमारे एरिया में है, विदर्भ में वगैरह, तो पानी आजू बाजू फैलेगा. और दैट वाटर विल स्प्रेड आउटसाइड द बैंक्स ऑफ द रिवर. नदी का जो सेक्शन रहता है, बैंक जिसको तीर बोलते हैं, वो बैंक के बाहर पानी फैलेगा यदि धरण की लेवल ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है. इफ द डैम लेवल इज लो which is equal to the banks of the river, then the water will be accommodated into the bank. Simple है. अगले साल हम फिर से in your 7th sem or 8th sem you will be learning irrigation engineering. There will be discussing it in more detail. So dams are constructed across the river and the streams to create the artificial lake or reservoir behind it. They are most important and expensive element. Therefore, their planning, their design, construction, and after construction operation of the dams and the reservoir behind it is very important. From the point of view of selection of site, relative merits of different types of the dam, and a selection of site बहुत important है. वो डैम की लेंथ कम से कम, क्योंकि डैम बहुत कॉस्टली रहता है, लेंथ कम से कम रह आना चाहिए, तो वो सर्वे करना पड़ता है ना. सर्वेइंग एंड इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट from again bread and butter subject of our civil engineers. So selection of site totally depends on the investigation part. Hydrological investigation, survey investigation, geological investigation. आगे में हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा टच करते हुए. Relative merits of the different types of the dam. Various types of the dam are there, as we have seen. Earthen dam, concrete dam, masonry dam, arch dam, gravity dam. Various types of the dams are there. Storage capacity and optimum yield. Dam ki storage capacity, optimum yield, and coordinated use of the storage for different purposes. Because we nowadays construct the multi-purpose dam. We use the dam for the various purposes. The purpose for which the dam is being constructed are the storage and control of water for irrigation purpose. That is the water from the reservoir is being used for the agriculture or irrigation purpose. For the domestic uses, for the domestic use means for the drinking purpose. Water supplies for the industrial uses, very important, because without water no industry will flourish. कोई भी इंडस्ट्री में पानी की जरूरत है, बिना पानी के जरूरत के इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती. तो इंडस्ट्रियल एरिया को, जैसे हमारे अपने कॉलेज के पास में बूटीबोरी का इंडस्ट्रियल एरिया है, तो पेंच अपना वना रिवर पे, सड़ेश्वर में एक डैम है, नांद रिवर पे, और रामा डैम है. तो वो रामा डैम से जो है वेना रिवर पे वो पानी अपने बूटीबोरी MIDC को सप्लाई होता है. तो इंडस्ट्रियल यूजेस. डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. Hydroelectric power is the cheapest mode of the production and supply of the power, because only once investment is there for the turbines, underground penstocks, etc. And once they are constructed, dam is constructed, then that water is used years together. हर साल बारिश आती है, डैम भरता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. Navigation for the transportation purpose. For the flood control, because we have seen in that hydrograph that how the flood can be controlled with the construction of the dam. Before the dam was constructed, how was the runoff hydrograph, and after the dam was constructed, how was the runoff hydrograph. The difference between the peaks, that is called as the attenuation of the flood or the peak, that we have learnt. And therefore for flood control also it is very important. Reclamation of the low lying lands. बहुत सारी जमीन
ये वाटर लेवल के या सी लेवल के नीचे में रहती है, जो दलदल जिसको बोलते हैं। तो वो दलदल वाली जमीन जो है वो उसको भी हम वहां पे एक आधा डैम वगैरह बना के पानी वहां का एक्सट्रैक्ट करके वी कैन यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। डेब्रीज कंट्रोल, जो बहुत सारे इसमें फ्लड्स में डेब्रीज आता है स्पेसिफिकली हिमालयन river, they bring lot of the silt and the debris because the velocity of the flow is very large there. तो वो इरोजन के कारण आता है, तो वो फिर बाकी उसका सिल्टिंग ना हो आगे में, इसलिए डेब्रीज कंट्रोल के लिए भी डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ द यूजफुल एक्वेटिक लाइफ, फिश एक्सेट्रा, एंड रिक्रिएशन पर्पस। Depending on the purposes served, reservoirs are classified as storage and conservation, flood protection, distribution, and multi-purpose reservoir. Multi-purpose reservoir, very important, is that which serves more than one purpose. For example, a reservoir is planned to protect the downstream area from floods and to store the water for irrigation and hydroelectric purpose is called as the multi-purpose। यानी क्या है कि वो फ्लड से प्रोटेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन साथ में ही वो इरिगेशन को भी वाटर सप्लाई कर रहा है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी दैट वाटर इज बीइंग यूज्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द मल्टीपर्पज रिजर्वायर। If we visit to the Pench project at Parshivani, Gosekhurd project, or even Vena project, Rama Dam, or you may visit nearby to your area any medium project, there definitely you will see along with dam there is an arrangement of the hydroelectric generation, small hydroelectric generation, that water which is released into the canal, when it is released, that head of the water and the velocity of the water is being used for running the turbines, and the after the turbine runs, it is connected to the generator and the electricity is generated. So this is the hydroelectric purposes we are adopting here, and you will also experience in your areas also. So multi-purpose river valley projects include following aspects. These are the various purposes the multi-purpose river project serves: irrigation, water supply for public health and sanitation, that is the drinking, and for using of the population, generation of hydroelectric power, flood control and river training, erosion and sediment control, inland navigation, fish culture, recreation, and the drainage purpose. Okay, all these are you are very well aware with. Now, what are the various processes or steps involved in planning of such big reservoirs? Okay, whatever we are learning, the same thing is being used while you are into the government department or any planning department where the reservoirs are constructed. So it is not that the bookish knowledge we are getting. It is practically applicable. So we must be aware about all these things. So with the help of the dam, the first and the foremost is from that dam or from that reservoir created, which needs and purposes that dam or the reservoir is serving must be known first. वो डैम से या रिजर्वायर जो बनने वाला है उससे हम क्या पर्पजेस सर्व कर सकते हैं वो हमें पहले मालूम होना चाहिए। एक आधा डैम जब बनाते हैं तो ये हम यहाँ से आजू बाजू के गांव को पीने का पानी दे सकते हैं क्या, खेती को दे सकते हैं क्या, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्या। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो ये इतना गॉड गिफ्ट है कि उसको अलग से पानी नहीं लगता है, वो इरिगेशन को सप्लाई करते हैं तो वो उसके साथ में ही दैट हेड एंड वेलोसिटी इज यूज्ड
by various turbines like the Francis and the Pelton wheel turbines etc. तो उससे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है। फ्लड कंट्रोल है या नेविगेशन है, ये सब पर्पजेस पहले हमें पता करना है, और इसके साथ में उसके ऊपर और कौन से यानी पर्पजेस, नीड्स, यानी समझो एखादा गांव है, वहां की पॉपुलेशन 1 लाख है, 2 लाख है, तो उनकी पानी की जरूरत क्या है, नीचे में खेती जो है कितने हेक्टर इरिगेट हो सकता है। अब ये काय के ऊपर डिपेंड रहेगा, सिर्फ डैम बांध के होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ में कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आएंगे, कुछ लिमिटेशंस भी आएंगे, तो वो भी मालूम होना चाहिए। उसमें तो सबसे पहला और मेन कंस्ट्रेंट है कि हाइड्रोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है, कि वहां पे होने वाला प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल, द वाटर कैरिंग द area of the catchment, very important, catchment area, because catchment area is accepting the precipitation water and it is then supplying in the form of runoff to the river. More the catchment area, more will be runoff. More will be runoff, bigger will be dam we can construct. Okay, so this is the correlation hydrological. तो catchment area हो गया, लेकिन catchment area बहुत बड़ा है, रिवर का जियोग्राफी भी हमें मिली है अच्छा सेक्शन, लेकिन वो एरिया में बारिश ही कम होती है, द प्रेसिपिटेशन इज लेस, है ना, होता है बहुत, जैसे अपन ने देखा कि हमारे विदर्भ में ही, ईस्टर्न विदर्भ जो है, जो हमारा भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर ये डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, गोंदिया, rainfall is more than 150 centimeters. लेकिन as we move towards the western Vidarbha, means from गोंदिया towards अकोला, अमरावती, अमरावती से भी आगे अकोला और आगे जाते हैं तो बुल्ढाना, तो रेनफॉल और द प्रेसिपिटेशन क्वांटिटी पर एनम reduces. तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा डैम बांध के कोई मतलब नहीं है, भले ही कैचमेंट एरिया बड़ा हो, है ना, ये एक लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट्स आ गई इसमें। और दूसरा आ गया फाइनेंशियल, मींस हाउ मच मनी इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट और एनी कंस्ट्रक्शन बॉडी, ठीक है, तो ये लिमिटेशन आ गई, यानी जब प्लानिंग करते हैं तो ये सब चीजें सोचना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है उसकी नीड्स, पर्पजेस हमारे ध्यान में आ गए, और उसके बाद में उसके लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स, वो दोनों इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाइड्रोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, देन some constraints may be due to geology, some constraints may be due to topography, कि पानी बहुत आता है लेकिन कैचमेंट कम है, पानी आता है कैचमेंट भी है लेकिन डैम के जैसी जियोलॉजी, इम्परमिएबल स्ट्राटा नहीं मिल रहा है, फाउंडेशन बराबर नहीं मिल रहा है, या क्रॉस सेक्शन जैसे वैली सेक्शन चाहिए, कम से कम डैम की लेंथ चाहिए, वो नहीं मिल रही है। So the engineer has to go through all these planning processes while doing this thing. Then he has to also get the nod or permission from the government regarding finances, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट के पास में है ना, जो हम टैक्स देते हैं उसके वहां से गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, कोई गवर्नमेंट नोटा नहीं छापती है। The money which we pay, that government returns in the form of money required for the development. तो वो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी फिर इनडायरेक्ट है, फिर पॉलिटिकल विल है, आपके एरिया में जो लीडर है वो आपके एरिया का कितना डेवलपमेंट चाहता है ना, इफ ही विशेस मोर एंड मोर डेवलपमेंट देन एनीथिंग कैन हैपन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। So all these things are needed, then anything is possible, because nowadays our civil engineering has developed to such a large extent that within a span of shorter period we can construct anything. तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे नागपुर की मेट्रो है, कि बिल्कुल 4-5 साल में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हमने देखा है, पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्लानिंग करते वक्त ये जो नीड्स एंड पर्पजेस है, इसमें ये जैसे मैंने लिस्ट आउट किए हैं
कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इरिगेशन वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, इकोलॉजी रिस्टोरेशन, यानी वहां पे फॉरेस्ट जंगल वगैरह आता है उसके अंदर में, तो फिर वहां पे क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, है ना। आप में से बहुत कुछ स्टूडेंट जो है वो मूल जो है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है या चंद्रपुर में है, मूल तालुका है, वो मूल में एक हुमन रिवर बहती है, हुमन। वो ह्यूमन रिवर पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा डैम प्रपोज किया, और उसका टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, काम भी चालू हो गया। लेकिन क्या हो गया कि वो डैम का जो अभी अपन ने अपस्ट्रीम जो डैम देखा, अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द डैम, या जिसमें पानी स्प्रेड होता है, सबमर्ज होता है, उसमें बहुत सारा पार्ट ताड़ोबा जंगल का जाता है, ताड़ोबा फॉरेस्ट का। अब ताड़ोबा में टाइगर है और फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो उसके कारण क्या हो गया कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ऑल दिस फैक्टर्स केम, एंड दैट प्रोजेक्ट हैज नाउ अंडर डिस्प्यूट। वो कोर्ट में गए लोग, और अभी वो प्रोजेक्ट पूरा ठंडे बस्ते में हो गया, बंद हो गया उसका काम। सो इकोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई उसमें कोई फॉरेस्ट जाता है, एखादा मंदिर जाता है, एखादा बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है ना, तो वो सब सोचना पड़ता है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, नेविगेशन प्रोजेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिकल डाटा, वो डैम बांधने के बाद में वो एरिया में जो लोग रहते हैं, या डैम के जो डाउनस्ट्रीम में है, जिनको कैनाल से पानी मिलने वाला है, वहां के लोगों की आर्थिक परिस्थिति कैसी है, और वहां पे डैम बनने के बाद में डेफिनेट डेवलपमेंट अच्छी होगी, है ना। आप बहुत सारे आप में से लोग हैं, बच्चे हैं, आपके फादर है, तो आपने देखा होगा आपके एरिया में भी डैम होने के बाद में, एक आधा रिजर्वायर होने के बाद में डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। एनवायरमेंटल डाटा, है ना, वही अभी मैंने बताया वैसे फॉरेस्ट का डाटा वगैरह, सब सरफेस जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, लैंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर रिक्वायरमेंट एंड द वाटर अवेलेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर कोई डैम कितना भी सोचा और कितना कुछ नहीं कर सकते। और वाटर अवेलेबिलिटी काय के ऊपर डिपेंड है, हाइड्रोलॉजी के ऊपर में डिपेंड है। हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी एंड द टोपोग्राफी। हाइड्रोलॉजी में फिर से प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इसके ऊपर। जियोलॉजी में इम्परमिएबल स्ट्राटा चाहिए डैम के फाउंडेशन में, डैम के अपस्ट्रीम में एज फार एज पॉसिबल। और टोपोग्राफी में कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा चाहिए, और वैली सेक्शन चाहिए। ठीक है। अभी सेकंड स्टेप, यानी डैम की मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के प्लानिंग में सेकंड स्टेप इज असेंबली ऑफ ऑल रिलेवेंट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। एखादे नदी के ऊपर में एखादा समझो डैम बांधना प्रस्तावित हो गया, एखादा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम बना रहे, यानी क्या, नाउअडेज द डैम इज नॉट सर्विंग ओनली वन पर्पस, it serves multi-purpose. It serves water supply for the domestic purposes, it serves water supply for the industrial, as well as nowadays the hydroelectric generation is being done, and irrigation purpose. So सबके लिए पानी यूज करते हैं, तो मल्टीपर्पज ही होता है वो। ठीक है। तो इसलिए फिर उससे अभी डैम प्रपोज हो गया, तो उसके लिए बाकी क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के प्लानिंग में आ रहा है अभी, कि वो जो जहां पे डैम प्रपोज्ड है, जो डैम साइट अभी हो गई प्रपोज, समझो एखादे एखादे नदी के ऊपर में एक ही डैम साइट, पहले तो वो 2-3 इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो 2-3 जगह डैम की अलाइनमेंट फिक्स करते हैं, है ना, प्लानिंग में, जब सर्वे इन्वेस्टिगेशन पार्ट में रहता है, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन पार्ट, वहां वो एट दैट टाइम द इंजीनियर्स लाइक अस, हमारे जैसे ही सिविल इंजीनियर वहां पे रहते हैं, और वो प्लानिंग करके सब बराबर जुड़ के आ गया इंफॉर्मेशन कि भाई हाइड्रोलॉजिकल है, जियोलॉजिकल है, टोपोग्राफिकल है, फाइनेंशियल है, पॉलिटिकल विल है। तो एखादा धरण अभी यहाँ पे बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो उसके लिए सेकंड स्टेप इन द प्लानिंग इज द कलेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन।
वहां के लिए कुछ पहले रिपोर्ट्स ऑफ एनी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडीज एट दैट डैम लोकेशन, पहले कोई इन्वेस्टिगेशन हो चुका है क्या, कोई स्टडी हो चुका है, वो यदि होगा तो वो डाटा भी हमें जमा करना है। रिपोर्ट्स ऑन प्रोजेक्ट सिमिलर टू दैट प्रपोज्ड, यानी ये जो प्रोजेक्ट अभी हम बना रहे हैं, ये जो डैम प्रपोज कर रहे हैं, तो उसके जैसा ही सिमिलर, एकदम कोई साचे जैसा नहीं रहता है यहाँ, 10 डैम एक जैसे नहीं रहते है ना, जैसे मूर्ति का साचा रहता है तो वैसे नहीं रहते, लेकिन सिमिलर कैचमेंट एरिया, सिमिलर टोपोग्राफी वैसे ऐसे रह सकते हैं, है ना, हमारे अनुभव के लिए, क्योंकि हम आगे में नया कुछ तो भी क्रिएट करने वाले, कंस्ट्रक्ट करने वाले, तो पिछले प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स है हमारे पास में, कंस्ट्रक्शनल डिटेल है, इन्वेस्टिगेशन डिटेल है, डिफिकल्टीज कंस्ट्रक्शन करते वक्त आई है, उससे ही हम आगे में इम्प्रूव हो सकते हैं। तो इसलिए हम फिर द रिपोर्ट्स ऑन द सिमिलर प्रोजेक्ट्स which has been done earlier, constructed earlier in that region, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, है ना, ये हमें चाहिए फॉर द एरिया इंटरेस्ट में बी क्रिएटेड यूजिंग बेस सर्वे मैप ऑफ द रीजन। दिस इज नाउ वी आर मूविंग इनटू द टेक्निकल पैरामीटर्स लाइक द सर्वे, दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। आजकल सब सैटेलाइट वगैरह है, एरियल फोटोग्राफी, उससे हम वहां के GIS कलेक्ट कर सकते हैं। टोपोग्राफिकल डाटा, फिर वहां पे प्रैक्टिकली सर्वे करेंगे, वहां पे सर्वेइंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, पूरा एरिया, हर एरिया की टोपोशीट रहती है, टोपोशीट में से पहले स्टडी करेंगे। टोपोशीट आपको शायद मालूम है, ऐसा मुझे लगता है, सर्वे 1 में आपने पढ़ा होगा। तो वो टोपोशीट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहती है, ऑल ओवर इंडिया की रहती है, तो हर एक पार्ट की, कंपार्टमेंट की टोपोशीट रहती है। तो वो शीट से हमें तो पहले सर्वे की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, पता चल जाता है। तो टोपोग्राफिकल डाटा either from the topo sheet and then actually by doing the survey and investigations and the satellite pictures which may be integrated, एक साथ सब जोड़ेंगे within the geographical information system। फिर वो एरिया का जियोलॉजिकल डाटा in the form of the maps, borehole logs along with values of the relevant parameters, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल डाटा यदि प्रॉपर हमें चाहिए वैसा है, तो इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट द इकोनॉमिकल डैम्स। सो जियोलॉजिकल डाटा कैसा मिलेगा, एक तो हमें एरियल फोटोग्राफी से मिलेगा, आजकल रिमोट सेंसिंग से बहुत सारी जियोलॉजी पता चल जाती है, और फिर साथ में इन सपोर्ट ऑफ दैट बोर होल लेंगे हम, बोर होल लॉक जिसको बोलते हैं, और उससे हम वहां की जियोलॉजी, स्ट्राटा कैसा है, हार्ड रॉक है कि सॉफ्ट रॉक है, परमिएबल है कि इम्परमिएबल है, ऑल दैट वी कैन एसेस विद द हेल्प ऑफ द। देन सेस्मिक एक्टिविटी डाटा, है ना, सेस्मिक यानी भूकंप, वो एरिया में भूकंप आता है क्या, इसके पहले आया है क्या, और आया है तो कौन से रिश्टर स्केल पे आया है, क्योंकि द डैम्स आर नीडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। ओके, so seismic activity data is very important. You all know that our India is first divided into the 5 zones, now they are converted into the 4 zones according to the intensity of the earthquake that takes place. So seismic data is very important. Then meteorological and hydrological data is very very important. Meteorological यानी जो हमारे रेनफॉल, विंड, the monsoons, summer, etc., all the meteorological data. Hydrological data यानी फिर runoff, etc., all these surface runoff, subsurface runoff. So the meteorological and hydrological data like rainfall, atmospheric and water temperatures, evaporation, humidity, wind speed, hours of sunshine, river discharge or runoff, river level, sediment concentration in rivers, etc. Okay, for water supply projects, यानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है तो डाटा फॉर ऑन द पॉपुलेशन एंड फ्यूचर पॉपुलेशन। ओके, आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए हमें कितना सोचना पड़ता है, और ये एक्चुअली करते हैं, यानी सिर्फ कागज जो पत्री नहीं रहता है, एक्चुअल बिल्कुल वाटर सप्लाई है,
तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, और फिर फ्यूचर पॉपुलेशन 5 साल के बाद क्या होगी, 10 साल के बाद, 20 साल, 25 साल, है ना। फ्यूचर पॉपुलेशन का सोच के ही वी डिजाइन और वी कंस्ट्रक्ट आवर डैम्स एंड द रिजर्वायर्स। सो ग्रोथ बेस्ड ऑन सम एक्सेप्टेबल फोरकास्ट मेथड। आपने पढ़ा है आपके एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 1 में, हाउ टू फाइंड आउट द फ्यूचर पॉपुलेशन एंड द फ्यूचर वाटर नीड, देन द इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट एंड प्रोबेबल फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। हमारे यहाँ जब ये सब डेवलपमेंट होता है तो इवन हर एरिया का, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका, उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी प्लानिंग रहता है। MIDC जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, हर एरिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लानिंग रहता है। उस हिसाब से वहाँ की वाटर रिक्वायरमेंट, और फिर उस हिसाब से वहाँ पे वो रिवर में से, डैम में से कितना पानी यूज कर सकते हैं, वो है। फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, डाटा ऑन द सॉइल इन द प्रोजेक्ट एरिया and on the crops already grown, including water requirement for the crops, है ना। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट करके बोलते हैं, आप अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे आगे में, है ना। हमने थोड़ा सा टच किया है जिसको इवेपोट्रांसपिरेशन में, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन एंड एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, थोड़ा सा टच किया है उसमें, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द इरिगेशन। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट यदि करना है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, करते ही है हम। डैम का कुछ पानी, मैक्सिमम ऑफ द वाटर वी यूज फॉर द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। सो डाटा ऑन द सॉइल इन द प्रोजेक्ट एरिया, अब इसको कमांड एरिया करके बोलते हैं। कैचमेंट एरिया इज अपस्ट्रीम ऑफ द डैम, कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज एरिया और द वाटरशेड एरिया यू कैन से आर द अपस्ट्रीम ऑफ द डैम, जहां से नदी को पानी मिलता है। और डाउनस्ट्रीम में डैम से या रिजर्वायर से जिस एरिया को, खेती को, एग्रीकल्चर पर्पसेस जिसको पानी सप्लाई किया जाता है, उसको कमांड एरिया करके बोलते हैं। ठीक है, हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, सिविल इंजीनियर्स, वी कॉल इट एज ए कमांड एरिया। तो कमांड एरिया का भी, कमांड एरिया जिसको फ्यूचर में हम पानी सप्लाई करने वाले हैं खेती के लिए, तो वहां पे अभी कौन सी खेती हो रही है, अभी समझो धान की खेती हो रही है। और अब यदि हमें 12 महीने यदि पानी अभी डैम का यदि अवेलेबल है, तो फ्यूचर में कौन सी खेती और डेवलप कर सकते हैं, गन्ना कर सकते हैं क्या, या और कोई फ्रूट के झाड़ लगा सकते हैं क्या, ये सब हमको in with the help of the agriculture department, the irrigation civil engineer has to study, and that thought is to be given while planning the project. As I have been from the water resources department, मैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, वहां से ही आया हूं, तो इसलिए मैं आपको ये खातिर से बताता हूँ कि ये सब चीजें दे आर वेरी वेल थॉट ऑफ, यानी सिर्फ ऐसा ऊपरी ऊपरी नहीं रहता, बहुत अच्छे से प्लानिंग से किया जाता है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो सॉइल है, क्योंकि सॉइल के ऊपर ही वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड रहेगी। तो डाटा ऑन सॉइल इन द प्रोजेक्ट और द कमांड एरिया एंड ऑन द क्रॉप्स ऑलरेडी ग्रोन, इंक्लूडिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, है ना। धान को ज्यादा पानी लगता है, कपासी को कम लगता है, तुरी को कितना लगता है, और जो भी अलग अलग क्रॉप लेंगे, सोयाबीन को कितना। सो वो सब क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ही बोलते हैं उसको। आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आधा यूनिट उसके ऊपर में या 1 यूनिट है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, और उस हिसाब से जैसे हम पीने के पानी के लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन और फ्यूचर पॉपुलेशन, और हमने वो 150 लीटर्स पर डे या 200 लीटर्स पर डे वगैरह हम जो वाटर रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे ऐसा डिसाइड किया है WHO ने वगैरह, तो उसी हिसाब से खेती के लिए भी, प्लांट के लिए कितना पानी लगता है, क्रॉप्स के लिए वो भी निकालना पड़ता है। ठीक है, उसको क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। वो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग रहेगी। लेकिन फिर ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों भी। देन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डाटा ऑन द पास्ट डिमांड एंड द फोरकास्ट,
यदि हम इफ वी आर प्रपोजिंग द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो पिछले जो भी 5-10 साल में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी डिमांड है और फ्यूचर में कितनी बढ़ती जाएगी, वो हिसाब से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हम प्लानिंग करेंगे फॉर द फ्यूचर पब्लिक एंड द इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर पावर एंड एनर्जी. डाटा ऑन एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड कैपेसिटी, इतना डिटेल में किया जाता है. डाटा ऑन फ्लोरा एंड फाउना इन द प्रोजेक्ट, यानी ये धरण बनने के बाद में ये प्रोजेक्ट में, जैसे अभी मैंने आपको बताया हुमन प्रोजेक्ट में, कि वहां पे हुमन प्रोजेक्ट में ताडोबा का जंगल ये सबमर्ज हो रहा है. तो इसलिए क्या किया गया कि वो प्रोजेक्ट को अभी पहले उसकी हाइट कुछ होंगी 5 मीटर या 10 मीटर, तो उसकी हाइट कम किया. कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में चालू है अभी, है ना, कुछ उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल है, यानी वो बाद में कभी डिस्कस करते हैं. लेकिन सिर्फ अभी डाटा ऑन फ्लोरा एंड फाउना समझ लेते हैं कि वो सबमर्जेंस में कोई जंगल जाता है क्या, कोई अच्छा एखादा एरिया ऐसा रहता है सैंडलवुड, वहां पे चंदन का जंगल रहता है, या और कोई स्पेशलिटी रहती है. तो ऐसा यदि सबमर्ज हो रहा है, एखादा डैम है, ऐसा अपन एक जस्ट एजम्पशन के लिए समझते हैं कि समझो ताजमहल ही उसमें डूब रहा है, यमुना के ऊपर डैम बना रहे हैं और वो डैम बनाते बनाते ताजमहल वो सबमर्जेंस में आएगा. तो नेचुरली वी विल नॉट गो फॉर द डैम because we will save the Taj Mahal because it has got another importance, okay, historical importance. तो ये उसको जंगल, फ्लोरा एंड फाउना उसको बोलते हैं. So in the project and on the fish in the river and lakes including data on the migratory and breeding habits. ठीक है, ये सब स्टडी किया जाता है. डाटा ऑन टूरिज्म एंड रिक्रिएशनल यूज ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स. टूरिज्म एंड रिक्रिएशनल, और टूरिज्म होता है बहुत, हमको सबको मालूम है, बस अभी हमारे जो रिजर्वायर्स है, डैम्स है, उसके ऊपर अभी टूरिज्म, रिक्रिएशन, रेस्ट हाउसेस है, गेम्स है, ऑल द थिंग्स आर नाउ डेज डेवलपिंग. तो ये सब सोचा जाता है, प्लानिंग किया जाता है, बिकॉज द टूरिज्म इज टू बी एनकरेज्ड. वेरियस टाइप्स ऑफ द डैम्स, इन शॉर्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम्स. Dams may be classified into the different categories depending upon the purpose for which the dam is constructed. Classification of the dam according to use. डैम जो बनाते हैं वो डैम के जो अलग अलग टाइप्स है वो काय के ऊपर डिपेंड है. पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, दूसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक डिजाइन, और तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड. ठीक है, लेकिन तीनों भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ऑल द इन ऑल द थ्री टाइप्स द सिमिलर टाइप्स ऑफ द डैम आर कंस्ट्रक्टेड, मींस मटेरियल वाइज आई मीन टू से. वो क्या है वो देखते हैं. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज, ये तो हमने देखा है, स्टोरेज, कंजर्वेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपर्पज. आजकल तो हम मल्टीपर्पज रिजर्वायर में ही जाते हैं. So that is classification according to use. Common example इसमें आपने देखा ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम, आर्च डैम, रॉकफिल डैम, वियर्स एंड बैरेजेस. कम हाइट के रहते हैं, छोटे रहते हैं, इसको वियर्स एंड बैरेजेस बोलते हैं. डाइक्स छोटे छोटे डैम है, वाटर स्प्रेडिंग, डेब्रिज डैम्स एक्सेट्रा. ओके, so these are the types of the dams constructed for all these purposes, but the same dams are constructed in all the other types also. Classification according to hydraulic design. ये डैम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डैम में पानी जमा होता है अपस्ट्रीम में. फ्लड रन ऑफ यदि बढ़ते गया, रेनफॉल चालू है, प्रेसिपिटेशन है, तो अप टू सर्टन लिमिट द डैम विल स्टोर द वाटर, अप डिपेंडिंग ऑन हाइट ऑफ द डैम. जितना पानी आया उतना थोड़ी समाएगा पूरा के पूरा, क्योंकि डैम में तो फ्लड से पानी आ ही रहा है, तो कुछ पानी डैम के ऊपर से छोड़ना पड़ता है. लेकिन वो डैम के जहां से छोड़ा जाता है उसको ओवरफ्लो सेक्शन बोलते हैं, उसको स्पिलवे करके कहा जाता है. हमारे हाइड्रोलिक्स में उसको स्पिलवे कहते हैं. ओवरफ्लो सेक्शन डैम के ऊपर से जहां से पानी बह के जाता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे वहां पे गेट्स लगाए रहते डैम में,
कोई डैम में गेट भी रहते हैं, कुछ डैम में अनगेटेड भी रहता है, बिना गेट का, है ना, स्पिलवे बोलते हैं उसको। और नॉन ओवरफ्लो सेक्शन है डैम में, कुछ पार्ट ये ओवरफ्लो सेक्शन रहते हैं, कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट नॉन ओवरफ्लो रहते हैं। जितना पानी, अब ये ओवरफ्लो सेक्शन फिर से काय के ऊपर डिपेंड रहेगा कि रन ऑफ के ऊपर में। रन ऑफ काय के ऊपर में डिपेंड रहेगा, कैचमेंट एरिया और प्रेसिपिटेशन, बारिश, है ना। और बारिश काय के ऊपर है, तो वो टोपोग्राफी, वो एरिया में कितना रेनफॉल होता है उसके ऊपर में, ठीक है। तो ओवरफ्लो, ये सब हम थोड़ा थोड़ा समझते जा रहे हैं कि कितना डीप में थिंकिंग किया जाता है जब ओवरफ्लो सेक्शन बनाते हैं तो, यानी स्पिलवे। और नॉन ओवरफ्लो सेक्शन में ग्रेविटी अर्दन डैम, ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम, arch dam, rock fill type of the dams. Okay, again the type of common example are the same. Only it's depending on the different classification. And last and but not the least classification of the dam according to the material used. जैसे कि रिजिड, नॉन रिजिड डैम। रिजिड डैम यानी जो डैम बहुत हार्ड या फर्म रहेंगे, फिक्स रहेंगे, जिसमें ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, रॉकफिल डैम, स्टील डैम, टिम्बर डैम, है ना। ग्रेविटी डैम, आर्च, रॉकफिल, स्टील एंड द टिम्बर, इनसे बने हुए डैम, दे आर कॉल्ड एज द रिजिड डैम। नॉन रिजिड डैम आर द अर्दन डैम एंड द रॉकफिल डैम, ठीक है। ये बाकी जो डैम है ये आइदर कंक्रीट से बनाए जाते हैं, स्टील से बनाए जाते हैं, लकड़े से बनाए जाते हैं, या पत्थर से बनाए जाते हैं, ठीक है, रिजिड डैम्स। लेकिन नॉन रिजिड डैम ये माटी से बनाए जाते हैं, अर्दन से, या माटी में पत्थर फिक्स करके उसको रॉकफिल डैम करके बोलते हैं। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द डैम बेस्ड ऑन द its various uses. Okay, now we will move on to our next part of our syllabus. We have discussed in much detail about the dams, the reservoirs, the purposes of the dams and the reservoirs, and the multi-purpose reservoirs, multi-purpose projects. Then we have seen the points to be thought of while planning these multi-purpose projects. Okay, we have discussed quite in detail, and then we have, at last we have seen various types of the dams, that is the walls which are constructed across the stream or the river. Now we'll be moving on to the next part, which is regarding the interbasin water transfer. Interbasin water transfer, ठीक है। basin, you know, catchment area. Basin is nothing but the catchment area, or it is also called basin and a drainage basin, यानी catchment area, या उसको हम बोलते हैं watershed भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर यानी एक बेसिन में से, यानी एक कैचमेंट एरिया से दूसरे कैचमेंट एरिया में पानी लेके जाना, या और इसको हम दूसरा वर्ड बोलते हैं जिसको रिवर लिंकिंग करके बोलते हैं। हर अलग अलग नदियां एक में को जोड़ना with the help of the canals or with various alternative arrangements, that is called as the river linking. So interbasin water transfer, that is the river linking. And next we will be discussing about the interstate river dispute, है ना। बहुत सारी नदियां ऐसी है हमारे भारत में कि जो जिसका ओरिजिन कोई स्टेट में होता है, और भाई वो इसकी लेंथ इतनी बड़ी 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 रिवर है हमारे यहाँ पे, गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलज, गंडक, एंड ऑल द वेरी बिग नर्मदा. सो दीज आर द, वी आर वेरी रिच इन द वाटर रिसोर्सेस ऑल्सो, है ना। हम भारतीय जो है नसीबवान इतने हैं कि जैसे मैंने बोला रिसोर्सेस में हम पानी के रिसोर्स में भी भरपूर श्रीमंत है, भरपूर रिच है, लेकिन सिर्फ प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए। इसलिए इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर या रिवर लिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबको मालूम है, इन आवर कंट्री, you all know, because maximum of you come from various parts of our country and our state and our area, Vidarbha also. So also you read the newspaper, you see on the news channel, on the TV, and also
your good friend of the authentic information is WhatsApp, है ना, जो सबसे ज्यादा गारंटीड और विश्वासार्ह इंफॉर्मेशन आपको देता है। गूगल पे नहीं देखते हम ज्यादा, गूगल भी है, गूगल इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड, गूगल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे भारत में हर साल, जैसे अभी हमारा मानसून खत्म हो गया, पूरे आपने पेपर में पढ़ा होगा कि हमारा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून, जो दक्षिण पश्चिम से जो भारत में मानसून आता है वो भारत से पूरा निकल चुका है अभी। लेकिन साउथ ईस्ट मानसून जो सिर्फ चेन्नई और कुछ पार्ट ऑफ द कर्नाटका को वाटर सप्लाई करता है, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन, वो थोड़ा बहुत आ चुका है, उसके कारण उधर बारिश होती है। तो ये मानसून जो है, ये हमारे ऑल ओवर, मानसून हमारे इंडिया को पानी सप्लाई करता है with monsoon winds. Monsoon are the winds, they flow from south to north and they bring water vapor from the sea, and the water vapors get converted into clouds, and all you are very expert now how the precipitation takes place, I need not explain. तो लेकिन ये हमारे भारत में यूनिफॉर्म हर जगह नहीं गिरता है, सब जगह मस्त थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया ऐसा नहीं होता है। कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश आती है तो कुछ जगह बहुत कम बारिश आती है, उसको लेस या कम और स्कैंटी यानी अनइवन, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, ऐसा रेनफॉल हमारे भारत में वी फाइंड दैट इन आवर कंट्री वी हैव लेस, सम एरिया गेट्स लेस रेनफॉल एंड स्कैंटी मीन्स नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल टेक्स प्लेस, which due to which in some area we find that there are huge flooding situation in certain areas. इतना फ्लड आता है और उससे इतने डैमेजेस होते हैं, और कुछ पार्ट जो है वहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, ड्रॉट यानी अकाल, ठीक है, उसको फैमिन भी बोलते हैं, दूसरा वर्ड है फैमिन। तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन ऑकर्स इन सब पार्ट एंड द फ्लडिंग सिचुएशन ऑकर्स इन अनदर पार्ट। So therefore, due to this uneven water supply, due to the monsoon, the socio-economic growth, यानी सभी तरफ में वहाँ की सब पूरे भारत भर में जो पॉपुलेशन है, तो कहीं कुछ लोगों की डेवलपमेंट अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, तो कहीं कुछ पार्ट में लोग गरीब है, क्योंकि बारिश नहीं आती, खेती नहीं होती, आई तो बहुत ज्यादा आती है, फ्लड आता है तो बह जाता है ना। सो ऑल दिस impacts, all this gives a very bad impact on the socio economical development of the country, है ना। लोगों की डेवलपमेंट होगी तो देश की डेवलपमेंट होगी, ऐसे देश की अपने आप थोड़ी डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई लोगों को काम मिलना चाहिए, हर इंडस्ट्री बनेगी और कैसे काम, ऐसे थोड़ी होता है। आपकी खेती भी अच्छी डेवलप होना चाहिए, खेती में भी लोगों ने जाना चाहिए। सो देयरफॉर टू प्रोटेक्ट रीजन और कंट्री फ्रॉम द फ्लड्स एंड द ड्रॉट्स, है ना, फ्लड और ड्रॉट से बचाने के लिए, इसलिए इट इज इनएविटेबल to transfer the water from surplus basin to the deficit basin by inter-basin and intra-basin water transfer. तो ये देश को फ्लड्स यानी पूर और ड्रॉट्स यानी अकाल, इससे यदि बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचा गया। ये कब सोचा गया? ये 1947 में हमारा देश आजाद होने के बाद में हमारे पहले इरिगेशन इंजीनियर या इरिगेशन मिनिस्टर, वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर वाज एन इंजीनियर, उनका नाम था राव। तो उन्होंने उस टाइम में ये सोचा कि हमारे यहाँ ये पॉसिबल है क्या ट्रांसफर ऑफ द वाटर फ्रॉम सरप्लस बेसिन, यानी जहां पे हर साल फ्लड आता है वहां के कैचमेंट एरिया का, वहां के ड्रेनेज बेसिन का पानी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द डेफिशिट बेसिन, यानी जो कैचमेंट एरिया में, जो ड्रेनेज एरिया में, बेसिन में बारिश कम होती है या जहां पे नदी को पानी कम है,
तो या नहीं है, तो ये बड़े फ्लड वाले एरिया से ऐसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? इसको इंटर बेसिन बोलेंगे। या एक आधे बार एक आधी बड़ी नदी रहती है, जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, इसका खुद का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। ये नदी को फिर और छोटी नदियां मिलती है, जैसे गोदावरी को वैन गंगा मिलती है, पैन गंगा मिलती है, वर्धा मिलती है, पूर्णा मिलती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां मिलती है, कृष्णा मिलती है, बहुत सारी नदियां मिलती है। तो इन नदियों के खुद के भी कैचमेंट्स है, बेसिन्स है। तो बड़े नदी में ही कुछ नदियां जोड़ सकते हैं क्या, उसको इंट्रा बेसिन करके बोलते हैं। सो इंटर बेसिन मीन्स फ्रॉम वन बेसिन टू अनदर बेसिन, और इन ओनली वन बेसिन, इंटर बेसिन, इंट्रा बेसिन बोलते हैं उसको। तो ऐसे हम वाटर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो इसके ऊपर स्टडी किया गया और इसका उत्तर हाँ में पाया गया है ना। वी हैव गॉट, आवर कंट्री हैज गॉट सच ए ब्यूटीफुल टोपोग्राफी। हमारे यहाँ जो सर्वे के बाद में जिसको टोपोग्राफी या जमीन का जो समतल है वो इतना अच्छा है कि हम नॉर्थ में का जो ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया लेवल इज क्वाइट हायर देन दी सदर्न इंडिया। भारत का नकाशा यदि आपने आंखों के सामने आया तो नॉर्थ इंडिया दैट इज द हिमालयन रीजन, एंड दी साउथ इंडिया उसको क्या बोलते हैं वो आगे में हम देखते हैं अभी। ये अभी सदर्न रीजन बोलेंगे हम, है ना। तो ये दोनों एरिया में ऐसा देखा गया है कि नॉर्दर्न एरिया का पानी साउथ इंडिया में ला सकते हैं बाय ज्वाइनिंग और बाय ब्रिंगिंग द वाटर थ्रू इंटर बेसिन। ओके, इसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये 1947 में इंजीनियर वाटर रिसोर्सेस और इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया, उसके मिनिस्टर थे राव। उन्होंने ये उस टाइम में प्रेडिक्ट किया, इसके ऊपर स्टडी किया और प्रपोज किया। लेकिन 1947 से लेके 2020 तक के इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ, एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत इंट्रा बेसिन का काम हुआ, इंटर स्टेट एक आधे स्टेट ने किया, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ। यदि हो गया रहता अभी तक के ऐसा ही कुछ तो भी फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, मे बी फॉर द इकोनॉमिकल रीजंस, पैसा नहीं था, कभी कभी राजकीय इच्छा नहीं थी, तो ये काम नहीं हुआ। यदि हो गया रहता तो आज हम दुनिया के अबो अमेरिका, यानी अमेरिका के भी या जो भी सधन कंट्री है, सधन यानी पैसे वाले, उनमें सबसे ऊपर में रहते। ठीक है, आज चालू है उसके ऊपर में फिर से। नाउ द study has been done by earlier by the when the Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, and now the study is going on, and the in near future the work may start. यदि ये रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट चालू हो गया, या ये इसको पैसा बहुत लगने वाला है, अरबों खरबों में पैसा लगने वाला है, तो आपकी जनरेशन और आगे की भी जनरेशन, इनको सिविल इंजीनियर को कोई काम की कमी नहीं रहेगी, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें। ठीक है, चलो अब आगे में यहाँ देखते हैं, और यहाँ पे हम आज ब्रेक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में एक आधे बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत की विशेषता है कि आवर इंडिया हैज गॉट ए जियोग्राफिकल एरिया ऑफ 328 मिलियन हेक्टर्स। हमारे भारत का जो एरिया है वो 328 मिलियन हेक्टर है, और पूरे दुनिया में हम 7वें नंबर पे है जियोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, 328 मिलियन हेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे भारत में वाटर पोटेंशियल ऑफ इंडिया पर एनम, यानी हमारे भारत में जो पानी की उपलब्धता है, हर साल जो बरसात वर्षा आती है उसके कारण वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर पोटेंशियल ऑफ द इंडिया पर एनम मींस पर ईयर इज 4 into 10⁶ मिलियन मीटर क्यूब, 4 into 10⁶ मिलियन मीटर क्यूब और 4000 किलोमीटर क्यूब। इतना पानी हमारे भारत में हर बार बरसात से आता है। आप सोचिए,
कितना? 4 × 10⁻⁶. Do we use all this water? See now, next, including snowfall, out of which, out of this 4 × 10⁻⁶, 1.887 into 10⁻⁶ million meter cube, that is 1887 kilometer cube, flows as river water. इसमें से इतना पानी नदी में से बहता है, और इसमें से, यानी ये जो पानी है इसमें से 100% water does not flow through the river. Some water percolates, some is stored into the depression storage, etc. Okay, some gets evaporated, some, so this much water flows through the river. इसमें से भी 1.033 into 10⁻⁶ million meter cube, that is 1000 kilometer cube, out of the 4000, means 1/4 of water is utilized, means 3/4 water is wasted, and balances zero, and balance, that is 0.854 into 10⁻⁶, that is out of 1.887, 854 kilometer cube flows into seas and the oceans. These are very important figures. They are asked in exam number of times. Also India experiences, है ना, हमारे भारतवर्ष को मानसून के कारण ब्लेस्ड विथ गुड रेनफॉल इन मेजॉरिटी ऑफ द एरिया. पूरे भारत भर में हमारे सभी जगह पे अच्छा बारिश होती है, एंड स्कैंटी रेनफॉल इन सम फ्यू लोकेशंस, कुछ पार्ट में कम भी बारिश होती है. इसमें राजस्थान वगैरह आता है, महाराष्ट्र का भी थोड़ा, जो हमारा पश्चिम महाराष्ट्र का भाग है, साउथ वेस्ट महाराष्ट्र, औरंगाबाद के नीचे का पार्ट है, उस्मानाबाद है, सोलापुर है, लातूर है, तो वहां पे कम बारिश होती है. तो लेकिन ओवरऑल बारिश अच्छी होती है. एवरेज रेनफॉल इन नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया इज अबाउट 300 सेंटीमीटर्स and 15 centimeter in northwest, that is Rajasthan part, in arid and semi arid regions. तो 300 सेंटीमीटर से लेके तो 15 सेंटीमीटर तक के हमारे यहाँ वर्षा होती है ना. कुछ तो पार्ट है चेरापूंजी वगैरह जहाँ 3000-4000 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, महाबलेश्वर में वगैरह. ठीक है, सो हियर वी विल टेक द ब्रेक.